बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स सुनते भी तो नहीं है। हमें तो सब पता है, हमारा वहाँ पे रिलेटिव है, हम वहाँ जाके देख लेंगे, फिर वहाँ जाके 12 बजे फ़ोन करते हैं कि सर रिलेटिव तो पिक करने नहीं आया, राइट। और इनका तो रूम बहुत छोटा सा है, अच्छा ये तो यूनिवर्सिटी से 20 माइल दूर रहते हैं, right? So these are real cases. The chances of getting good accommodation reduces, and you end up paying more. You end up paying 30% more if you book in probably in April, June, versus booking in July, August, September, right? And that will also be leftover options. As I'm saying, you're going abroad just not to take a degree. वो तो ऑनलाइन भी मिल जाती है अब. You're going abroad, spending $50,000 to $200,000 over a period of time is to have the experience. Hello students, today we are going to talk to Mr. Saurabh Arora. Mr. Saurabh is that one personality from our industry who has helped lakhs of students in finding accommodation abroad. Now all of you must be at a stage where you have an admit now. You are right now looking at visa, accommodation and other things that help you settling down there. And in that process, accommodation becomes the very critical part of it. Accommodation is so important that if you get it wrong, then your life may be miserable when you are there, and you might come across problems that you should not have been facing those problems in the first place. So today we are going to talk about accommodation in details. We'll talk to Mr. Saurabh and we'll understand that in his experience of sending lakhs of students abroad, helping them getting the accommodation, what are the key challenges that the student face, and what are the things that they can do which can actually help them avoiding those problems related to accommodation. So first of all, thank you, Saurabh. Thank you for coming here and talking to us today. Thank you, Aman. Thank you for the invite. Right. And congrats for all the good things you've been doing. Right. So, yeah. Thank you. I'm a big fan of University Living, one organization that Thanks. You have taken some monkey off my shoulder that you're not a big fan of me, but University Living, and that's what it should be all about. Right. Yeah. So sort of accommodation as a category, right? That doesn't come as the first thing in the mind when a student thinks about abroad education, right? Right. So first, actually, I want to understand from your word, what is accommodation? Whether when it comes to abroad education, what role does it play? What are the key areas where student gets frustrated, gets something that is not in there? Right. No, absolutely. Thanks for asking me this, and great that now industry talking about accommodation and taking note of it, because when I started, 15 years back, and before that I went through this, when I went to Nottingham, didn't get my housing, stayed in a hotel, and then realized ये सेकेंड हाईएस्ट स्पेंड आइटम कोई बताता ही नहीं, और ना हम पूछते हैं क्योंकि माइंड में नहीं आता, क्योंकि हम तो पहली बार जा रहे हैं. एंड देन वी एक्सपेक्ट दैट वेयर वी आर गोइंग, दैट यूनिवर्सिटी, दैट इंस्टीट्यूट, कॉलेज विल हैव सम अकोमोडेशन, बट इट्स नॉट द वे. Even in India, I study from Delhi University, so I didn't get my hostel from Delhi University, right? Delhi University में सीट ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, right? And अभी तो पता नहीं, मेरे टाइम पे भी नहीं मिलती थी, right? So housing is something which probably everyone is aware, but they start late. And some credit to all of us, all the industry where people don't tell about housing, or they don't want to talk about it, or probably they're not expert about it, right? Secondly, then students and parents, mindset है, हम जा तो रहे बाहर पढ़ने, हम 15 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 साल से हम सेविंग कर रहे हैं, राइट? बट वीज़ा से पहले अकोमोडेशन नहीं बुक करेंगे, राइट? कुछ क्रेडिट टू प्रॉब्ली यूनिवर्सिटीज, काउंसलर्स एंड ऑल ऑफ अस, एंड कुछ इंडिया का या स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, लास्ट में देखेंगे, घर तो बाद में देखेंगे, रह तो ले गई. और अगर हम गलती से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से होते तो हमें लगता है कि यार घर तो मिल ही जाएगा, एयरबीएनबी है, होटल्स है, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम विच यूज्ड टू बी. नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10 years, I've been shot on the rooftop, now doing free podcasts like this to create awareness, wherein now, yes, people got aware that housing is not just one of the option, as important is education loan, admission and accommodation. In fact, housing is the second largest spend item. If a student is spending $15,000, out of that around 30% is a housing, housing spend, right? So people are getting aware, and it's glad that all of us are talking about housing, and we still need to go a long way, wherein students need to start early. They need to have a fallback option.
they should definitely not land to their dream destination without booking their accommodation, right? And do their research. And then there are marketplaces like University Living, wherein you can discover, search, book, connect with your future roommates, talk to a student who have already stayed in those accommodation, so we create the ecosystem, wherein people can search, book, and do all the documentation, payments, and everything end to end, right? So yeah. Right. So one thing that I picked from what you said is accommodation is the second largest spend item. Right. Can we talk about a bit on that? Because what I have been given to understand is कि students go abroad, they find food, accommodation, and then they share among themselves. There are, especially for example in US, people have roommates. Right. Maybe in other countries Yeah, as well. yeah. So can we talk about this big four, the accommodation cost that comes along there, and what is the usual practice that students do? They go and book accommodation in the university or outside university? Really good. And what is the difference between the both of them? So you have done the easy work, and now I need to do everything end to end. Allow me some time, because a very layered question, or very, very pertinent and important question. So to start with, let me bifurcate and keep it very simple, right? So there are two kinds of accommodation. One is on campus, another is off campus. That means एक जो university देती है, which is on campus or hostel accommodation. The other is off campus. Right. Probably recommended. हाँ, Right. उसको मैं off campus बोलता हूँ. अब on campus, off campus में, then on campus is your hostels, and off campus then you have two options. One is PBSA, purpose-built student accommodation, and the other is non-PBSA, non-PBSA, right? Non-PBSA में, there are other further bifurcation. It can be private apartments, it can be shared apartments, it can be homestay, it can be probably co-living or some other flexible non-PBSA. And PBSA is purpose-built student accommodation. As the name suggests, this is purposely meant for students. ये यूनिवर्सिटी ही देती है, कॉलेज देता है? Most of the PBSA are being privately owned and more professionally managed than university. Okay. बट कहीं कहीं कंट्रीज में, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि आपके ऑन कैंपस में PBSA भी होते हैं उसी के अंदर, बट मैनेज प्राइवेट करते हैं. तो स्टूडेंट को इतना कॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल है कि मुझे यूनिवर्सिटी में रहना है, यूनिवर्सिटी बाहर रहना है. यूनिवर्सिटी के रहने का फायदा ये है कि आप यू आर थिन एंड थिक ऑफ एक्शन, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, या फिर बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो सकती है. सी आई एम द ओनली वन हु डोंट डिस्करेज टू स्टूडेंट नॉट टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी. और आई तो से प्लीज डू अप्लाई, because see, let me take up a step back. One student out of 6 get university halls. 85% need to stay outside, right? And then if you are an international student, you already have a handicap, because you will apply probably once already. Local students or Chinese students or international students already applied. So this is where now students are getting aware. All of us are getting the awareness that the moment you know which university you are going, or you have paid the deposits, which is in January, Feb, March, start doing accommodation. Don't wait for August. Don't wait for July. Don't even wait for June, May, because you're not only competing with your Indian students, you're also competing with Chinese. So not only competing with Chinese, you're competing with international, local, domestic students. And as good accommodation, which everything in life, as most of the things don't stop for you, it become either unattainable or expensive. So the more time you take, the chances of getting good accommodation reduces, and you end up paying more. You end up paying 30% more if you book in probably in April, June versus booking in July, August, September, right? And that will also be leftover options. तो ऐसा आपने क्यों कहा कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जो है उसमें पहले लोकल स्टूडेंट्स करेंगे, फिर चाइनीज करेंगे, फिर इंडियन करेंगे? ऐसा कोई रूल होता है या ऐसे जनरल नॉर्म? सी रूल्स नहीं है, बट अगर आप स्टूडेंट जर्नी की एक स्टूडेंट की एक एप्लीकेशन जर्नी देखेंगे, राइट? सो इफ यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, लेट्स से, आपका मेन इनटेक फेब होता है एंड देन जुलाई होता है. सो फेब का मतलब है आप प्रॉब्ली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन, बिकॉज ऑडियंस आर मोस्टली इंडियंस, राइट? सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट व्हेन दे गो टू ऑस्ट्रेलिया, लेट्स से, फॉर फेब इनटेक, they start their application in probably by August, September, October. दिसंबर तक उनको एडमिट आता है, एंड देन वो अप्लाई करना शुरू करते हैं. एंड बिकॉज लॉट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट दे वेट फॉर वीजास, राइट? तो वो फिर फेब में करते हैं, या फिर जुलाई के लिए जून जुलाई में करते हैं. एंड इफ
in Australia, let's say, they are 1.5 million students, local, international मिला के, उसमें से 1.1 million लोकल डोमेस्टिक है, 4-4.5 लाख इंटरनेशनल है. अब उस 1.1 मिलियन में भी अराउंड 30% है जो प्रॉब्ली एडिलेड से मेलबर्न जा रहा है या कैनबरा से सिडनी जा रहा है, तो उसको भी अकोमोडेशन चाहिए. और वो तो लोकल वहाँ रहता है, उसको पता है कि यार दे आर 42 यूनिवर्सिटीज, दे आर 54,000 बेड्स ऑन कैंपस, बाकी बाहर है, तो मैं तो फटाफट अप्लाई करूँ, और उसको वीज़ा भी नहीं चाहिए, राइट. फिर उसके बाद चाइनीज थोड़ा अर्ली मार्केट है, तो वो और पहले कर देते हैं, तो चाह कर भी इंडियन लेट हो जाते हैं. अब यहाँ पे ये है कि कुछ प्रैक्टिकली बोलूँ, सो येस, आई एम नॉट सेइंग कि आप एकोमोडेशन विदाउट वीजा पे कर लो, राइट, बट देन देयर पॉलिसीज, इफ देयर नो वीजा नो पे. इफ आपका वीजा नहीं आ रहा, आपने बुक भी किया हुआ है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका लॉस भी होगा, दैट विल प्रोसेसिंग फी और बुकिंग डिपॉजिट, जैसे आपके यहाँ भी होता होगा लोन में, राइट. एंड आई टेल ऑल द स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गोइंग टू अब्रॉड एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2-3 years and already spend fortune and lots of time and efforts with your application, with your loan application, with IELTS and whatnot, paying $200, $250, $500 to secure accommodation, for something which you are going to stay for a year or 4. Don't just wait. And अगर आप मैथ्स भी करोगे, क्योंकि हम लोन आपके चैनल में जहाँ पे ज्ञान और धन है, तो धन की बात भी करेंगे. अगर आप एक एकोमोडेशन ऑलमोस्ट आप जैसे डिपॉजिट पे करते हो फीस का, उस समय बुक कर रहे हो, वर्सेस आप वीजा की बुक कर रहे हो, तो आप 30-40% एक्स्ट्रा पे कर देते हो. तो अगर एक स्टूडेंट $10,000 खर्च कर रहा है, तो 40% इज ऑलमोस्ट $4,000. अगर वर्स्ट सिनेरियो में आपने पहले अप्लाई कर दिया और आपका वीजा नहीं आया, आपका $250-500 गया, तो भी आपको 3-3.5 की सेविंग्स है. एंड इसमें कोई मेरा वेस्ट इंटरेस्ट नहीं है. आप मुझे इसमें चैलेंज कर लो, कैलकुलेट कर लो. आई कैन मेक यू स्पीक विद 1000 स्टूडेंट्स एंड आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू दिस, सो बहुत बेसिक है, राइट. फिर भी स्टूडेंट नहीं करते, तो या तो अवेयरनेस, या फिर लोगों को बताते नहीं लोग, या फिर लोग पूछते नहीं है. जरूरी नहीं है कि सारा कुछ हम ना एजुकेशन काउंसिल में डाल देते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट पहले सुनते भी तो नहीं है. हमें तो सब पता है, हमारा वहाँ पे रिलेटिव है, हम वहाँ जाके देख लेंगे, फिर वहाँ जाके 12 बजे फ़ोन करते हैं कि सर रिलेटिव तो पिक करने नहीं आया, राइट. और इनका तो रूम बहुत छोटा सा है, अच्छा ये तो यूनिवर्सिटी से 20 माइल दूर रहते हैं, राइट. सो दीज आर रियल केसेस, राइट, एंड ग्लैड दैट यू बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन. बिफोर वी गो टू द नॉन PBSA, जो PBSA होता है उसमें क्या लोकल स्टूडेंट्स का कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऐसा भी कुछ है? नहीं, तो ये एडमिशन में होता है, यूनिवर्सिटी के साथ होता है. लकली सो फार international student not sponsoring PBSA accommodation like university. So very good question. So let me talk about PBSA, right? Purposely student accommodation. So these are like आपके यूनिवर्सिटी हॉल जैसे है, बट प्रोफेशनली बेटर मैनेज है, बिकॉज उनका कोर है, यूनिवर्सिटी का कोर क्या है, एकेडमिक्स. उनका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर या एडमिन नहीं है, राइट. ऑफ कोर्स दे नीड टू हैव अकोमोडेशन, दे हैव अकोमोडेशन, बिकॉज आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप हार्वर्ड में जा रहे हो या आप UCL में जा रहे हो, राइट. आप बहुत सारे पेरेंट्स एक मिथ चला जा रहा है ना, यार यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो सेफ है, इट विल बी चीपर, right? So why I say myth? In fact, I'm not discrediting any university. In fact, we are on UCL website, we are on Birmingham website, we are on JSU website. बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमें प्रमोट करती है, बिकॉज उनके पास लिमिटेड एकोमोडेशन है, राइट. एंड बिकॉज वी डोंट से कि हमसे वो करो, हम तो सीधा कहते हैं कि यार एकोमोडेशन स्टार्ट जल्दी करो एंड टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन. आप यूनिवर्सिटी को भी अप्लाई करो, आपको मिल जाता है, ग्रेट, बट पहले ऑप्शन दो ना टेबल पे, राइट. तो यूनिवर्सिटी अप्लाई करो, और वो भी अगर आप अंडर ग्रेड हो या फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मिलता है, थर्ड फोर्थ ईयर में तो वैसे नहीं मिलता, पोस्ट ग्रेड को वैसे नहीं मिलता. 80% इंडियन स्टूडेंट्स आर पोस्ट ग्रेड हु गोइंग अब्रॉड. तो आप यू एनी विच डोंट स्टैंड अ चांस टू गेट अकोमोडेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी हॉल्स, राइट. एंड देन इवन इफ यू कैन, देन टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन ना, कंपेयर तो करो. फिर एक मिथ है कि यूनिवर्सिटी हॉल जो है वो सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं, दोनों मिथ है. मुझे तो महंगे पता है कि यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन महंगा होगा. हाँ, तो दोनों मिथ है. तो अगर आप यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन महंगा है तो PBS से थोड़ा सा 5 से 10% महंगा है, सस्ता हो सकता है. लोकेशन एंड बिल्डिंग नई है, पुरानी है, रूम टाइप क्या है, बट जनरली आई कॉल देम वैल्यू फॉर मनी. आप एक अकोमोडेशन में जा रहे हो, राइट, जहाँ पे आपका बिल्स इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड, मेन फॉर स्टूडेंट्स. आप रह रहे हो, आपकी लाइट का आपको दिक्कत नहीं है, आपका कोई टूट जाता है, आप रिसेप्शन में जाओ, सब कुछ ही टेकिंग केयर. यू आर गोइंग फॉर अ ईयर टू टू स्टडी. आप वहाँ घर मैनेज करने थोड़ी जा रहे हो, राइट. वो तो आप जब वहाँ सेटल हो जाओगे, सेकंड थर्ड ईयर वैसे करोगे. आप जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो आपको ये भी नहीं पता कि मैं रूममेट कौन होगा मेरा,
राइट. तो ऐसे में आई ऑलवेज सजेस्ट फर्स्ट ईयर में, इफ यू आर गोइंग टू फर्स्ट ईयर, लाइक से आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हो, राइट, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, या फिर लेट्स से हाईली रैंक यूनिवर्सिटी में नहीं भी जा रहे, दोनों केस में आप ज्यादा पढ़ने रहे हो या फिर पार्ट टाइम करने जा रहे हो, कुछ तो करने जा रहे हो, तो आप ऐसी जगह रहो ना जहाँ पे यू आर प्रोडक्टिव एंड इट्स वेल कनेक्टेड, एंड देन इट्स अ ट्रेड ऑफ. हर एकोमोडेशन का इज अ ट्रेड ऑफ. इफ यू वांट अ चीपर ऑप्शन यू नीड टू स्टे अवे. इफ यू स्टे अवे देन आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, आपको ट्रैवल करना, आपका टाइम लग जाता है, यू नो, बिकॉज टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी. Unfortunately, in India, we don't been taught this, that time is the biggest currency, and there's always a trade-off, right? आपको सबसे पास वॉकिंग भी नहीं मिलेगा, आपको बड़ा रूम भी नहीं मिलेगा, और आपको सस्ता भी नहीं मिलेगा. इन तीन में से ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा. Either you look for cheaper option, but be okay to stay away, you know, or be okay to share, you know, and then every student need to be aware कि what they are trying to balance out. ट्रेड ऑफ तीन का ही है, लोकेशन, प्राइस, रूम टाइप, राइट. एंड ये सब चीजें यूनिवर्सिटी लिविंग वेबसाइट में, ऐप में सब इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, बट स्टार्ट थिंकिंग दिस वे, राइट. सो कमिंग बैक टू पीबीएस मैं बता रहा था, तो एज दे आर मेंट फॉर स्टूडेंट्स, राइट. सो दीस आर एवरेज 300, 350, 500 रूम बिल्डिंग. अब आप सोचो, जैसे आप एजुकेशन लोन आप उन्हीं यूनिवर्सिटी को देते हो ना जिनकी रैंकिंग अच्छी है या जिनकी आउटकम अच्छा है, रिपेमेंट आए, राइट. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरा थॉट ये था कि यार लोन क्यों लेना है, you know, ये तो महंगा पड़ता है, right? अब नाउ आफ्टर स्पीकिंग विद यू एंड फ्यू ऑफ माय पीयर ग्रुप, आई एम लाइक ये लोन तो लेना बहुत जरूरी है. आपको कंप्लायंस हो रहा है आपका, आपको पता चले यूनिवर्सिटी में लोन इसलिए मिलता है क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रीवियस आउटकम अच्छा है, जॉब्स अच्छी मिलती है, यू नो. तो बिल्कुल, तो सिमिलरली यू नो पीबीएस से फायदा क्या है, जब कोई 300 मिलियन 350 मिलियन बिल्डिंग बना रहा है, तो वो क्या करेंगे, द लोकेशन विल बी गुड, इट विल बी वेल कनेक्टेड, safety, security will be there. Right. You stay with international students. You know, HM a big shout out to everyone. Please don't go and stay only with Indians. Don't just go and stay only with Gujaratis or Delhiite or Mumbai. अब वहाँ जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोजर है और नेटवर्क है. योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. यू नो, आई कैन प्राउडली से आज मैं दुनिया में कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी, मैं डिनर अकेला नहीं करता. That's a very good मैं नहीं करता डिनर. accomplishment in life. I would say that's my net worth. You know, of course, you know, probably we have maintained the relationship. You know, we put in time and investment mentally and physically to meet them. But if you're going abroad, it's not about academics. मैं तो कहता हूँ academics तो बहुत सारी जगह इंडिया का बहुत अच्छा है, right? But it's a overall holistic experience you are going for. You know, so to take loans. अगर आपको 100% नहीं लेना, 20%, 30% लो, but बिल्कुल लो. Apply to best university and have a fallback option. And similarly, accommodation may apply to university hall, but also have an option whether PBSA, non-PBSA. And then if you start early, you have this superpower to decide. Don't wait for visa. अगर यूनिवर्सिटी भी बोलती है, सब बोलते हैं ना, वेट करो यूनिवर्सिटी वीजा की, बट अगर आप सही इंटेंट के लिए जा रहे हो, आपने लोन, आपका फाइनेंसिस ध्यान हो गया, आपका एडमिशन अच्छा है, आपका इंटेंट ठीक है, आपको वीजा मिलेगा. यूके में 94-98% वीजा सक्सेस है, ऑस्ट्रेलिया में 70-80% है. बट अगर आप देखोगे उन बच्चों का वीजा नहीं मिल रहा जिनका प्रॉब्लम फाइनेंसिस इंटैक्ट नहीं है, तो आपके पास ज्ञानधन हो गया, आप ऐसे जगह रह रहे हो जहाँ पे आप शो नहीं दिखा पा रहे, राइट. सो लॉजिकली देखोगे ना, तो वीजा को क्रैक करना बहुत आसान है. You know, apply to university education loans, apply to good university or whatever university you want to study, or you can crack, or probably you can afford, and then book your accommodation on time. And then when you go for a visa, you show these documents. Why an international officer will not give you a visa? दो तीन चीजें देखते हैं ना वो, आप मेरी कंट्री में आओगे और आपके फाइनेंसिस नहीं है, और अगर आप अपने को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो देन यू विल ईट आउट ऑफ माई कंट्री रिसोर्सेज. सेकेंड, आपका इंटेंट ठीक नहीं है. थर्ड, आप ऐसे रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं जो प्रॉब्ली लेजिटिमेट नहीं है, सिंपल नहीं है, राइट. प्लीज कॉमन सेंस, राइट, एंड डू द राइट थिंग. स्टार्ट अर्ली एंड लुक एकोमोडेशन बियॉन्ड यूनिवर्सिटी हॉल्स. आप ये तो चीजें करेंगे ना, आपका वीजा भी आएगा, आपका सक्सेस रेट भी मिलेगा आपको, आप पैसे भी बचाओगे, अच्छी जगह रहोगे, एंड प्रॉब्ली योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ बिगर आउटकम. Probably that's a job, that's a immigrant visa, or that's a startup visa, or you want to come back and start, you know, supporting your parents or do a job in India. Focus on your skills when you're going abroad. You know, so this is the advantage of PBSA. Correct. So we have established कि international university के अपने accommodation होते हैं, and then there is a PBSA, Right. and all of that. What about food? Right, because Very important. accommodation सोचते हैं, if you're thinking about accommodation, next thing you think is कि food. Very good point. Right. जो जनरल
स्टूडेंट्स जानते हैं या बातें करते हैं वो यही करते हैं कि यार बाहर जाके तो खुद कुक करना है, एंड विच इज टू एन एक्सटेंट वो भी। बट क्या पीबीएसए में या यहाँ पे जो आपने बोला है कि कस्टमाइज स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज, आपकी जो उसकी लोकेशन है, फैसिलिटीज है, रूम का है या डेकोरम है, वो सब उस एक स्टडी के लिए बनाया गया, राइट? फूड का क्या है? Very good point. Very good point. And you're asking someone who's a big time foodie. There were time when I used to live to eat. Now I'm moving towards eat to live. And that's a big transition. I'd suggest everyone to make it as early as possible. But food is where Indian people bond. Food is where people make friends or enemies on food. Yeah. Enemies because I've seen, आपका दूध चोरी होते हुए, and I've seen किसी ने कुक करके बनाया और जब उसने रात को गया तो उसने देखा खाना ही नहीं है, और अच्छी वाली देखी है मैंने, बिकॉज आई हैव स्टेड इन ऑल दिस अकोमोडेशन, राइट? सो लाइक अनलाइक इन इंडिया वेयर इन इट्स अ पैकेज व्हेन यू स्टे इन इंडियन लेट्स से स्टूडेंट हाउसिंग, दे आर लाइक स्टैंडर्स एंड योर स्पेस एंड फ्यू अदर्स इन इंडिया. सो यहाँ पे हॉस्टल में आपको फूड इज अ बाय पैकेज, मतलब बिना फूड के आप अकोमोडेशन चला ही नहीं सकते इंडिया में. कंपेयर टू इंटरनेशनल, मोस्टली दे आर कॉल्ड catered and non-catered. So that's why I say if you are undergrad student, do apply to Ministry Hall because most of the halls are catered. आपको फूड मिलेगा. वो अलग चीज है कि वो फूड हो सकता है कभी अभी आप जैसे when I went तो 7 बजे ब्रेकफास्ट होता था, 5 बजे डिनर होता था. मेरी बॉडी नहीं बनी यार 7 बजे ब्रेकफास्ट और 5 बजे डिनर करने की, और पैसा मैंने सारा कुछ दिया हुआ है, राइट? सो बट देन दे आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी लाइक अर्ली राइजर, अर्ली ईटर, एंड दे कैन मैनेज ऑल दिस. Please do apply to Ministry Hall and it will help you a lot. But most of the non-PBSA or off-campus accommodation, they are non-catered. Right. क्योंकि internationally mostly accommodation में food नहीं मिलता. But you have the provision to cook. Right. आपके पास pantry होती है, आपके पास common kitchen होती है, और उसमें appliance सारे होते हैं. And one quick hack, if you want to be one of those in-demand girl or a guy in your class or in your community, if you learn to cook good, you will probably get a girlfriend soon, or your boyfriend soon, or even a job soon, because I've seen it. And I mean I realized this very late, but now I can cook 7-course meal, and it's a superpower. So if you can learn to cook before going, great. If not, you will any which way learn. चाय, अंडा, मैगी के अलावा आपको जले हुए टोस्ट वो सब बनाना आ ही जाएगा, एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ दोस बिकॉज वो आपने बनाया है, राइट? सो मोस्टली केटर्ड एंड नॉन केटर्ड. केटर्ड यूनिवर्सिटी हॉल्स में होता है, नॉन केटर्ड जो है वो ऑफ कैंपस में होता है, बट वहाँ पे प्रोविजन होता है, राइट? एंड वहाँ पे एक मतलब मोस्टली यूके में भी या जितने भी आप बिग 4 कह रहे हो वो मोस्टली ठंडी दे आर लाइक कूल, आई वुड से कोल्ड क्लाइमेट्स, या सो वहाँ पे यू कुक एंड यू फ्रीज एंड देन यू कम बैक, बिकॉज एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता. या तो आप यूनिवर्सिटी में इतने बिजी होते हो, या फिर यू हैव पार्ट टाइम्स एंड यू हैव अदर इंटर्नशिप्स एंड व्हाट नॉट. कभी भी आप भूखे पेट भी सो जाते हो, तो इसलिए बेटर है. मोस्टली वहाँ क्या चलता है, सैटरडे संडे को फ्रीज बना के फ्रीज कर दिया, राइट? एंड देन आए, गर्म किया, खाया, क्योंकि आप रोज बाहर नहीं खा सकते. इट्स एक्सपेंसिव, इट्स ऑल्सो नॉट हेल्दी, राइट? एंड एट टाइम मोस्ट ऑफ टाइम यू क्रेव फॉर इंडियन फूड, राइट? सो फूड का मोस्टली यही होता है लोग कि या तो when they stay together, at which mostly are in the second, third year, third, fourth year in undergrad or second year of your postgrad, then they have friends, they stay with people who they know, and then they cook together, right? So you can bond on food or you can fight on food. That's your choice. So Saurabh, now we've talked about accommodation, we've talked about food, and we've learned कि accommodation is such an important thing. आप early book करोगे तो 30% तक cost saving कर सकते हो, right? इवन बिफोर वीजा भी आप बुक करोगे तो भी करना ही चाहिए, मतलब नहीं करे तो बैड डील है, क्योंकि नो वीजा नो पे है, एंड आपको एडमिशन नहीं मिलता तो नो प्लेस नो पे है, राइट? वर्स्ट सिनेरियो में आपका डिपॉजिट विल नॉट बी पेड, राइट? एंड अगर कंपेयर करोगे यू विल लाइक किसी ने बताया क्यों नहीं था मुझे, राइट? जैसे एयर टिकट बुक करते हो आप, नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल. 99% ऑफ अस बुक नॉन रिफंडेबल बिकॉज हमारा प्लान क्लियर है. इसमें तो आप 2 साल से प्लान कर रहे हो. Have the right to think about that 4-5% chance, which makes sense. Now, actually, I want to talk about कि जो accommodation स्टूडेंट ढूंढता है या पेरेंट्स एक अपने बच्चे के लिए स्टूडेंट ढूंढते हैं, किस तरह की वनरेबिलिटी वहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ क्या फ्रॉड उनके साथ होते हैं. कुछ मैंने एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ ऑनलाइन किसी को पे कर दिया, वहां जाके देखा कुछ है ही नहीं. कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं कि दिखाया क्या था मिला क्या था.
तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, बट आप पहले प्रॉब्लम्स बताइए फिर सॉल्यूशन बताइए कैसे कर। बिल्कुल, और ये होती है, पहले भी होती थी जब मैं 15 साल पहले गया था और मैंने पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया, जब भी होती थी, अभी भी होती है। प्रॉब्ली चांसेस कम हो गए या फिर तरीके और बढ़ गए हैक करने के, स्पैम करने के। एंड दिस इज वेयर आई एम सेइंग दैट स्टार्ट अर्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डू योर रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन कंपेयर, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सिग्नल्स टू कंपेयर ना, टेस्टिमोनियल्स एंड टॉक टू योर स्टूडेंट्स, यू नो। बस ये सब जब ही कर पाओगे जब टाइम से स्टार्ट करोगे। सो कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं मैं बताता हूँ। तो एक तो मेरी तरह लोग थे और अभी भी होते हैं कि हम वहाँ जाके, हम दिल्ली वाले यार, यू नो, हम वहाँ जाके देख लेंगे। तो मैंने देख लिया, यू नो, आई स्टेड इन अ होटल फॉर हाफ मंथ्स, you know, and I got fortunate. I started my career into this. You know, my Twitter is Accidental CEO. You know, because, or X is Accidental CEO, because I never thought I will start or something. I just got lucky to do something which I went through, and naturally, you know, एक दूसरे हेल्प करते, फ्रेंड्स को हेल्प करते करते बन गया। देन स्कैम्स कैसे होते हैं? आपने फेसबुक गए या व्हाट्सएप में मैसेज आया, राइट, और आपने किसी को रीच आउट किया कि यार मुझे भी रहना है, आपको भी रहना है, अच्छा भाई तू मुझे डिपॉजिट दे दे, मैं जैसा रह लूँगा। एंड आप मिले भी नहीं कभी, आप डिजिटली कनेक्ट कर रहे हो, एंड आपने डिपॉजिट पे कर दिया और गायब। देन आप ऑनलाइन किसी से मिले, ये तो मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। देन आप कहीं, आप खासकर यूरोप में, जब ऐसा बहुत, यूरोप में थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज लैंग्वेज का इशू है, यू नो, एंड देन आप एग्रीमेंट पढ़ नहीं पाते, कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं पाते, राइट। एंड यूरोप वाले और थोड़ा सा है कि यूरोप में खासकर फ्रांस जर्मनी में दे ऑल्सो स्टार्ट ओपनिंग द रूम वेरी लेट, जिसकी वजह से मैं अगर बोल भी रहा हूँ स्टार्ट अर्ली, सो आई गेट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर गोइंग टू फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोप, हु स्टार्ट अर्ली, दे वांट टू स्टार्ट अर्ली, बट लैंडलॉर्ड ही जून जुलाई के बाद प्राइस खोलता है, राइट। अब वो थोड़ी बदमाशी है उनकी, बिकॉज जितना बात खोलेंगे उतना ज़्यादा वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। आपके ऑप्शन कम होगा, टाइम कम होगा, राइट। बट एक तो ये स्कैम होता है कि आपने फेसबुक में कहीं कनेक्ट हो गए या किसी हो गए और उन्होंने दिखाया कुछ, निकला कुछ, या फिर आजकल ना देखो डिजिटली बहुत चीज़ें दिखती है और बहुत चीज़ें सही होती है, यू नो, बट आप यू नो वी AI कैन शो यू लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो दिखेगा कुछ और बिल्कुल सही होगा वो, बस आप वहाँ पहुँचोगे तो तो बहुत छोटा रूम है। इनफैक्ट दिस इज द रीजन वी आर द इंडस्ट्री फर्स्ट, वी हैव अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन आवर ऑफिस वेयर इन पीपल कैन कम एंड सी द रियल रूम, यू नो, स्टूडियो कैसा होता है, ऑन शूट रूम कैसा होता है, विल टॉक अबाउट ऑल दिस jargons, you know, and when they come and they see, अच्छा, you know, even if I'm paying 500-600 pounds a week in UK, in London, this is the room I get. At least the expectation gets sold, you know, and then हमने वहाँ AR/VR लगाया हुआ है, तो you can, you know, put your Oculus and, you know, and you can actually see exactly this is a room. And if you go on a website, you can measure the beds. यार ये किंग साइज है कि क्वीन साइज है, 19 स्क्वायर मीटर का है कि ये, यू नो, 5x6 है कि 6x5 है, राइट। सो दीस आर ऑल वी हैव डन बिकॉज दीस आर द क्वेश्चन स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क, और दे यूज्ड टू गो देयर एंड फिगर आउट दैट यार आपने तो डबल साइज बेड बताया था तो क्वीन साइज निकला, राइट। बिकॉज वी ऑल्सो हैव इवॉल्व, देयर वर टाइम व्हेन, सी, आई हैव वॉक्ड मोर देन 300-350 cities personally, you know, literally personally, you know, बिकॉज उस समय डिजिटल इतना नहीं होता था, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2011 to 2015-16, देन वी स्टार्टेड यूजिंग AI ML। अब तो सब AI की बात करते हैं, बट मतलब हम भी AI ML की बात करते थे, बट AI वाज व्हाट, डेटा कैप्चर कर रहे थे, मशीन लर्निंग हो रहा था और प्रेडिक्शन आ पा रहा था, राइट। एंड नाउ वी रियलाइज, अच्छा ये तो हम 10 साल से कर रहे हैं, राइट। देन वी एंश्योर दैट वी शूट ईच एंड एवरी पिक्चर, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑन अ वेबसाइट इज वेटेड एंड curated. You know, do we make mistakes? We still make mistakes, right? But then now we are making new mistakes, or we have the provision to solve those mistakes. Each and every property is curated. We are working with partners who we were working for like 5 years, 10 years, right? So trust है, respect है, there are checks and balances, right? But scams होते हैं. We also at time go for a toss. At time हम भी सब कुछ चेक करने के बाद भी हमारे को होता है, तो लाइसेंस तो था यूनिवर्सिटी लिविंग उसका, यू नो, एकोमोडेशन का, काउंसिल ने भी लाइसेंस दिया हुआ है, बट रियलाइज की उन्होंने पेमेंट नहीं करी हुई थी, यू नो। सो एवरी टाइम वी आर गेटिंग स्मार्टर, बट दीज पीपल आर गेटिंग स्मार्टर। हेंस आई टेल माई ऑल माई स्टूडेंट्स दैट, you know, use authentic websites, use authentic apps. There are few in the industry, right? And there are ways to check them. Testimonials है, आप टीम से बात करो, you know, जो बहुत ज़्यादा डिजिटल है, मुझे उनसे भी डर लगता है, you know, अगर आप वहाँ पहुँचे और आपके पास कोई कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है और AI रिप्लाई कर रहा है, गॉड सेव यू। बहुत ज़्यादा मैनुअल है जिनके सिस्टम्स ही नहीं है, you know, उनके साथ मुझे डर लगता है, बिकॉज देन देखो इंसान है, आप वहाँ 2 बजे पहुँचोगे, इंसान सो रहा होगा। इवन इफ आई क्लेम दैट आई वर्क 22/6
even if we claim that we have 400 people team all across the world, even if we claim that we have, we have helped 100,000 students, every year we're doing 25-30,000 students, we still do mistakes. But we are aware and we have provisions, right? So what I'm telling my students that scams and non-ethical people, you need to be smart, you need to start early, ask right questions, right? And then have these value systems कि अगर आपको कोई फ्रेंड ने आपसे किसी ने बुक किया उससे चेक करो, वहां जाके मत बुक करना. कोई भी आपको बोले ना, कोई रिश्तेदार ही बोले, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये भी एक सेगमेंट हम डिस्कस कर सकते हैं, बट प्लीज एकोमोडेशन इज सो इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक योर फर्स्ट स्टॉप. आप पहली रात को कैसे फील करोगे, दैट विल डिफाइन आपका साल कैसे जाएगा. मुझे याद है अमन, मैं जब 2011 में नॉटिंगम गया था, मैं जनवरी इनटेक में गया था, एक्सचेंज के लिए गया था. आई रीच देयर लाइक कि मैं कहाँ रहूँ, लाइक व्हाट डू यू मीन. हम लाइक अरे आपकी यूनिवर्सिटी पे आओ. थोड़ा डिस्कस किया, कुछ कनेक्ट्स बने, फ्रेंड्स बने, तो उन्होंने 2 दिन तो रख लिया. एंड मंडे दे लाइक यू आर ऑन योर ओन, राइट. एंड अभी भी होता है, होगा, क्योंकि क्यों, रूम छोटे हैं, राइट. अब तो इंडिया में भी होने लगा ना कि यार तू आया था 2 हफ्ते रह लिया, अब तू बस निकल भाई. मेरे फ्रेंड्स है, मेरी गर्लफ्रेंड्स है, मेरी फैमिली आती है, वट एवर. यू ऑल बिकम वेरी इंडिविजुअलिस्ट ना, राइट. एंड वहाँ पे और ज्यादा होता है, बिकॉज दैट्स अ इंडिविजुअल सोसाइटी. द रूम्स आर स्मॉल, राइट. इट्स एक्सपेंसिव, राइट. एंड पीपल आर बिजी. People don't have time to pick you up or take care of yourself. जा 2 दिन, right? So be on yourself. Don't be dependent. Because अगर आप 50 लाख खर्च कर रहे हो, ज्यादा डिफरेंस क्या आएगा, 1 से 2 से 3 लाख रुपए डिफरेंस आएगा अच्छी एकोमोडेशन और बुरी एकोमोडेशन रहने पे. स्कैम होने से बचने से वर्सेस कोई भी चीज टू गुड टू बी ट्रू नहीं होती. तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि एवरेज तो बर्लिन में 800 से 1200 यूरो है और आपको 400 मिल रहा है, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट. हमारे दिमाग को सबको पता होता है, पर हम फॉल हो जाते हैं कि अच्छा मुझे मिल रहा होगा यार, मैं स्मार्ट हूँ और मैं लकी हूँ. भाई वहाँ एवरेज अगर 800 है तो आपको 750 मिल जाएगा. 400 मिल रहा है, डोंट फॉल फॉर इट. इफ यू आर फॉलिंग फॉर इट, यू आर ट्रैप. यू आर योरसेल्फ से कि आप बैल मुझे मार, राइट. बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं. आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास. यही तरीका है कि यहाँ से बुक करो, ऑथेंटिक वेबसाइट से बुक करो, टेस्टिमोनियल्स बात कर लो सीनियर से, यूनिवर्सिटी से बात करो, यूनिवर्सिटी से बात कर लो कि आपका कोई रिकमेंडेड है क्या, ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे कुछ लिस्टेड है. आप सोचो ना, अगर यूसीएल हमें वेबसाइट लिस्ट कर रहा है, हमें बर्मिंघम लिस्ट कर रहा है, ब्रिस्टल लिस्ट कर रहा है, JCU लिस्ट कर रहा है, ECI यूज कर, मतलब ऑलमोस्ट 30-50 यूनिवर्सिटी हो गई. और ऑल द एजुकेशन पार्टनर इन इंडिया वी आर वर्किंग विद और ग्लोबली आर वर्किंग विद. दिस इज द credibility we build up over a period of time. It's a very thankless job. अगर कोई न्यूज नहीं आती ना मुझे, तो मैं खुश रहता हूँ कि चलो स्टूडेंट हैप्पी है. अच्छा होगा तो उनके से है, बुरा होगा तो मेरी वजह से, राइट. तो we start with that point. No news is good news. And there anyone calling, please answer the call, because and that's why we work 22/6 Saturday Sunday including. Because बेचना आसान है, सारी जर्नी आपकी बुकिंग के बाद होती है. एंड पीपल इंडिया में क्या करते हैं, बुकिंग तक सब हाथ पकड़ते हैं, कैश बैक दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे. एंड वी आर लाइक, सी इफ यू वांट टू जस्ट सेव मनी, probably one of the right people. But if you want to save money and have the support system, because your journey starts after booking, not till booking. आई एम श्योर आपने इस तरह की कुछ स्टडीज की होगी, राइट, कि एक अच्छे अकोमोडेशन में रहने से आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, राइट. उस डायरेक्शन में इफ यू कैन शेयर समथिंग कि इफ यू आर डेली दिन भर थक के एक ऐसे अकोमोडेशन में जाना जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वर्सेस एक अच्छे अकोमोडेशन में रहना, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, उससे जो आपका मेन गोल है विच इज स्टडिंग एंड देन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एंड देन जॉब, उसका क्या कोरिलेशन है, राइट. सो सी आई टर्न 40, तो आई वाज टेलिंग माय टीम दैट यार मैं अगर 30 का होता तो ये सब चीज़ें नहीं करता, अगर वो 30 में इतनी समझ आती तो मैं 20 में ये सब नहीं करता, राइट. तो मैं सब पता होता है, सबको सब पता है. आज का जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है. वे आई एम कमिंग इन दैट इन स्पाइट ऑफ वी नोइंग थिंग्स, वी अगेन फॉल फॉर चीपेस्ट, लेटे बिल्कुल आखिरी में करेंगे, जो सस्ता वो करेंगे. और अगर कोई एक्सपर्ट कुछ बता भी रहा है तो भी उसमें डाउट करेंगे, शक करेंगे, राइट. क्योंकि ये इंडियन मेंटालिटी मेरी भी है, राइट. बट अगर यू आर टॉकिंग टू एक्सपर्ट्स, take all the information, because see, as experts also we can help you take informed decision. I'm not here to tell you what is right and what is wrong. There are some students who are going with your spouse, then probably on campus, off campus is not for you, then probably you need to look for private apartments or your what we call it HMOs or shadow apartments in US or in UK, right. Because spouse के साथ you can't stay on campus and PBS से भी नहीं रखते, तो आपको non PBS से ही देखना पड़ेगा. If you're undergrad student, I would say apply to University Hall. But if I'm spending 2 crores for 4 years,
and I'm from IB. Do I want to share washroom? No. Do I want to, if I'm coming from a typical Indian family, wherein my parents and I might not be comfortable sharing with mixed gender flats, because this is not a culture, right? Then, probably look for a studio, right? So it's very customized. Like जैसे आज के टाइम पे आपके हर चीज कस्टमाइज हो गई ना, गाड़ी से लेके घड़ी से लेके व्हाट नॉट, इवन पर्सनल ट्रेनर्स, राइट? सो एकोमोडेशन आप 1 से 2 साल रहोगे, आप 15 से 20 हज़ार पाउंड या 10 से 15 हज़ार डॉलर खर्च करोगे, वो आपको रिसर्च करके करना है, राइट? एंड देन एज आई एम सेइंग, यू आर गोइंग अब्रॉड जस्ट नॉट टू टेक अ डिग्री. वो तो ऑनलाइन भी मिल जाती है अब. यू आर गोइंग अब्रॉड, स्पेंडिंग $50,000 to $200,000 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज टू हैव द एक्सपीरियंस. सो आज अगर मुझे पूछेगा सौरभ, अगर तू स्टार्टअप दोबारा शुरू करता, मैं क्या करता, तो आई वुड हैंग आउट विद पीपल हु हैव बीन अहेड ऑफ माई जर्नी, जिन्होंने ऑलरेडी 1 बिलियन की कंपनी बना ली, 100 मिलियन रेस कर लिया. मैं उनके साथ मिलूंगा, उनसे सीखूंगा, वर्सेस आई विल बी इन द सोसाइटी वेयर आई नो इट ऑल. If I'm the smartest guy in the room, I'm in the wrong room. Right? Similarly, if you are staying in a accommodation जहाँ पे आप पैसे तो बचा रहे हो, आप मतलब वो ये ना penny wise pound foolish, आप 50 लाख खर्च कर रहे हो, बट 1-2 लाख बचाने के चक्कर में आप दूर रह रहे हो, अपना टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे, फिर आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, फिर आप इंडियन के साथ रह लेते हो, फिर आप कहते हो मेरा ना बच्चा इन होलिस्टिकली एक्सपीरियंस नहीं आया उसको. अरे यार, तुम जब एकोमोडेशन जब इतना खर्चा किया हुआ 1-2 लाख की, इससे तो फर्क भी नहीं होगा. और कहीं कहीं तो ये यूनिवर्सिटी से भी सस्ता है. कहीं कहीं तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे टू स्टे अवे एंड आप कन्वेंस में 50, 100, 150, $200 या पाउंड खर्च कर देते हो महीने के, वर्सेस अगर आप पास रहोगे, यू हैव मोर टाइम, you will save on conveyance, and you stay in a place wherein probably you are in a flat wherein one person from China, one person from England, one person from Azerbaijan, and आप सोच रहे हो आपकी कितनी कल्चरल न्यूएंसेस आप सीखोगे. वो सुपर पावर है, राइट? आपको उनके न्यूएंसेस पता होगा, आपको आप जहाँ चाहकर भी आपको उनकी कंट्री बारे पता होगा, उनके आपको फेस्टिवल्स बारे पता होगा. एंड पीपल हु गो अब्रॉड इज मेनली टू गो दैट इंटरनेशनलाइजेशन ना, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं ना, कि हमारा होराइजन बढ़े, राइट? हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, राइट? सो देन दिस इज दैट. सेकेंड, एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, इफ आई एम स्टेइंग इन एकोमोडेशन जहाँ पे मुझे अपने बिल्स देखने हैं, मेरा को टूट जाता है, नल का टूट जाता है, लाइट टूट जाती है, राइट? और मुझे वो करना है, तो उसका ट्रेड ऑफ क्या होगा? आप कुछ क्लास छोड़ोगे? अगर मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, अगर आप 50 लाख की पर क्लास का भी कैलकुलेट करोगे ना, तो आपकी एक क्लास आराम से 10, 15, 20 हज़ार की आ जाती है. आप वो मिस कर रहे हो for things which you are not supposed to do and you are not good at it, right? Yes, when you are staying there and settling down, then दूसरे, तीसरे, चौथे साल आप वैसे ही PBSA से नॉन PBSA मूव करना शुरू हो जाओगे. देन आप जब वहाँ पे आपको जॉब मिल गई, आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, फिर आप और ज़्यादा ट्रेड ऑफ कर सकते हो कि पास रहना, दूर रहना, बड़ा रहना, छोटा रहना. बट व्हेन यू आर स्टूडेंट, यू आर गोइंग फॉर अ ईयर और 2, डोंट जस्ट स्टे विद ओनली इंडियंस, डोंट जस्ट स्टे इन चीपेस्ट ऑप्शन. मतलब आपका चीप, मैंने कहीं पढ़ा था, cheapest not the best, best is the cheapest. बहुत क्लीशे है, but I believe these cliches are so common sensical and so logical कि हम मिस कर देते हैं, right? So बहुत important है. In fact, one of the reason I've been doing okay in my life is where I got blessed to stay from shared washroom to penthouse, university halls to PBSA. आज भी मैं जाता हूँ तो आई स्टे इन PBSA, बिकॉज होटल में तो हम नहीं लेते ना, बिकॉज आई गो टू PBSA. एक तो वाइब है, यू हैव स्टूडेंट्स, यू आर देयर प्लेइंग, आपकी मतलब एक आपकी पूरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस. वहाँ पे TT भी है, पूल टेबल भी है, अब तो पिकर बॉल भी होने लगे है, साइकिल पार्किंग है, आप नीचे जाते हो, आपके फ्रेंड्स है, आप बात करते हो. क्योंकि एक ना, जब व्हेन यू गो अब्रॉड, मेंटल हेल्थ एंड लोनलीनेस इज रियल, एंड इन सब चीज़ों को ठीक करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. यू स्टे विद फ्रेंड्स. एंड इधर आपको समझना जरूरी है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट है, तो प्रॉब्ली टेक ए स्टूडियो. सो स्टूडियो इज व्हेन यू हैव योर ओन वॉशरूम, यू हैव योर ओन किचन इट, एंड इट्स अ सेल्फ कंटेन रूम मेरा आपका पैंट्री एंड वॉशरूम सब कुछ है. तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. उसके नीचे आता है ऑनसूट रूम. सो ऑनसूट रूम होता है आपका रूम अपना है, आपका वॉशरूम अपना है, बट किचन कॉमन है. तो इफ यू आर अ MP वर्ड और जहाँ पे आपको अपना रूम चाहिए, अपना वॉशरूम चाहिए, बट आपको किचन भी चाहिए और आपके साथ शेयर भी करना है, आपको आपको और का खाना चोरी करना है या आपको अच्छा खाना है, तो प्रॉब्ली इनटू ऑनसूट इज अ गुड रूम और क्लस्टर ऑफ ऑनसूट इज अ गुड रूम. एंड इफ यू आर टाइट ऑन बजट्स, आई ऑलवेज से एज अ स्टूडेंट,
absolutely don't be shameless. You're a student, you need to be tight on budget. This is your time where you can say कि पैसा नहीं है, क्योंकि जॉब क्या बोलोगे पैसा नहीं है, शादी नहीं होगी, लोग जज करेंगे. So this is your time where you can shamelessly say I am tight on budget, even if you afford it, and then look for private apartments, where रूम अपना है, वॉशरूम शेयर है. बट ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत है कि आपको कैसे लाइफस्टाइल चाहिए. एंड इट्स कैन चेंज ऑल्सो. अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हो, फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी हॉल में रहो, मिलता है तो. सेकेंड ईयर में पी बेस में रहो एंड प्रॉब्ली ऑन स्टूड में रह सकते हो. थर्ड ईयर में आपकी अब आपको पढ़ना है और थोड़ा सीरियस हो, आप थोड़े और रिजर्व हो जाते हो, जैसे इवॉल्व होते हो, स्टूडियो में रहो, राइट. उसके बाद you can look for private apartment, you can stay with your partner, you can stay with your friends, so like एक स्टूडेंट अपनी गाड़ी की जर्नी रहती है ना बचपन में, कि पहले मैं वैगनर लेता हूँ, फिर मैं i20 लेता हूँ, फिर मैं होंडा सिटी लेता हूँ, फिर मैं XYZ लेता हूँ, राइट. सिमिलरली हाउसिंग की जर्नी हो सकती है, राइट. सो सौरभ, थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात करें. ठीक है. राइट, मैं आपकी वेबसाइट पे आया, राइट. आपने जो भी अब तक बताया, मैंने अपने प्रेफरेंसेस डाले कि मेरे को अकेले रहना है, शेयर्ड रहना है, मेरा बजट ये है, मेरे को शेयर करना है नहीं करना है. आई एम अज्यूमिंग ये सारे ऑप्शंस आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, राइट, फिल्टर की तरह, राइट. मैंने किया कि मेरे को ये 3 पसंद आ गए, तो फिर मैं क्लिक करके डायरेक्ट आई कैन लाइक पे एंड बुक, राइट, विदाउट टॉकिंग टू योर टीम, राइट. या आपकी टीम से बात करना जरूरी है? राइट, नहीं. सो वी हैव एन ऐप, we are absolutely have end-to-end booking journey in WhatsApp, right, or any social media, right, and on website, wherein you come on a home page, you can put which city, which university, which college you are going. Basis that you will move to a listing page, and then you can, like आप Airbnb या air tickets book कराते हो, then you can filter out with distance, price, amenities, testimonials. ये अंडर ग्रेड के लिए चलते हैं, पोस्ट ग्रेड के लिए चलते हैं. हमने जितना कस्टमाइज किया हुआ है, दे आर लाइक प्रॉब्ली मोर देन 50+ फिल्टर्स, वेयर इन यू कैन शॉर्टलिस्ट बेसिस कि मुझे रूम बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, बालकनी चाहिए, या ग्राउंड फ्लोर में रहना है या हायर फ्लोर में रहना है. आर दिस बिल्डिंग्स प्रेफर्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट और डोमेस्टिक स्टूडेंट. जितनी भी कस्टमाइज हो सकता है हमने किया हुआ है, एंड वी आर इम्प्रूविंग, राइट. So then they shortlist, they filter out, and then they have option whether to speak with my team, or they can book end to end. Right. So it can be DIY, do it yourself, or it can be talk to my team. Mostly people do hybrid because it's a high ticket size ना. आप 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, right? यहीं से बुक कर रहे हो. So you need to you short. Generally people come just shortlist, and then from 3-5 options they talk to my team, and then on our website we are totally tech, so we have a conventional chatbot, wherein आप chatbot के अंदर ही आपको पूरी guided journey है, right. Then we have our own AI voice bot, so you can talk to them, because what we realize that lots of Indian international students don't want to talk. They want to talk when they want to talk, right. और वो अगर रात के 2 बजे है तो be it, and that's why we are there. Right. अगर आपको DIY करना है आप end to end कर सकते हो. आपको assisted journey बोलते हैं हम इसे, assisted journey चाहिए तो we have AI and we have human, and then if you want कि नहीं हम traditional है, हमें ऑफिस आना है, हमें मेरी टीम से मिलना है, तो we have 40 people on the ground, we work with all the education partners, we do events, fairs, and pre-departure, so we are omnipresent, right. And we don't tell which is right journey, we tell what is you comfortable with. आपको ऑफिस आना है, my team will host you, will show you the real rooms, right. आपको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन है, आपको हाइब्रिड करना है हाइब्रिड है. तो मुझे पसंद आ गया, आपकी टीम से बात कर ली, तो शुरू में कितने महीने का मुझे बुकिंग अमाउंट देना होता है, या कोई सिक्योरिटी होती है, व्हाट इज दैट प्रोसेस? एंड जस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने होते हैं क्या? केवियट्स होते हैं उस एग्रीमेंट्स? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. सो जनरली ये कंट्री टू कंट्री और प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर डिफर करता है, बट अगर मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट में बताऊँ, एवरेज चीज़ें बताऊँ, तो यू बुक यू पे अ डिपॉजिट फी विच इज 1 week to 2 weeks, कहीं पे 1 month होता है, बट मोस्टली 1 to 2 weeks आप डिपॉजिट पे करते हो. उसके बाद यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे आप हमारी वेबसाइट पे एंड टू एंड हो जाता है, कहीं पे वी फैसिलिटेट एंड you sign a contract with accommodation partners directly, right? But we facilitate. So we vet, we curate, we facilitate, and we ensure both the parties are taken care. We are a managed marketplace. That's the purpose of marketplace, right? We matchmake and we ensure everything is curated, right?
कंप्लाइंट है. उसके बाद देन आप जब जाने वाले होते हैं, आप लेट्स से आप यूके जा रहे हो अब, तो 7 सितंबर या 15 सितंबर या 21 सितंबर मोस्टली आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है. एंड बिकॉज अगर आप पीबीएस से कर रहे हो तो वो आप उसी दिन से स्टार्ट होता है. तो आप 1 या 2 दिन पहले जाओ और 1-2 दिन होटल में रह लो या उसी सुबह पहुंचो एंड देन यू हैव अ चेक इन. सो चेक इन से पहले प्रॉब्ली 1 महीने पहले यू नीड टू पे योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स. So you can pay installment in 3 or 4 installments. If you want to pay monthly installments, so we have a facility. We have created a process wherein we can get you a local guarantor. You can pay installments, 8 installments or monthly installments. And then उसके बाद आप जब डिपॉजिट पे करते हो तो यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. इट्स लाइक आपको भी नहीं चाहते कि आपके लास्ट मिनट कोई कैंसिल कर दे, वो भी नहीं चाहते कि आप नहीं आए, राइट. एंड देन दे आर केसेस वेयर इन लेट्स से खुदा न खास्ता आपको कैंसिल करना पड़ा, वीजा नहीं आया, देन दे आर पॉलिसीज. एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड एवरीवन टू बुक थ्रू ऑथेंटिक एंड पीपल एक्सपर्ट. बिकॉज लोग ना, बहुत सारे लोग खुद से कहते हैं देखा कहीं, इंडियन फितरत है ना हम सबकी, देखे हर जगह, फिर क्या हम डायरेक्ट बुक कर देते हैं. एंड मैं गलत नहीं कहता, क्योंकि बहुत लोगों को होता है या मार्केट प्लेस या ज्ञान धन या यूनिवर्सिटी लिविंग मीडिएटर है, हमें कमीशन मिलेगी. हमें मिलती है कमीशन, हमें मार्केटिंग बजट से मिलते हैं, बट उस कमीशन हम प्रोडक्ट बनाने में आपको जो 400 लोग की टीम है उसके लिए लगाते हैं, राइट. एंड वी आर फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो वी वांट टू मेक मनी. दैट्स व्हाई वी कैन better product, better experience. But now I turn the table. I am booking an accommodation through University Living, wherein they are not charging you anything, right? And it's will asterisk मैं यार आपको clear करना चाहूँगा, but mostly we don't charge for anything. And our model is not wherein we are a mediator. हम broker नहीं है कि 100 की चीज़ 105 की बेच रहे हैं, right? We are a authentic, officially representative of these accommodation partners, wherein for you will not only get best deal, you will get assisted journey and you will get some discounts or best deals, because we do in volumes, due to which we get a better price, right. And which we pass on to you, right. So for a student it's make end-to-end sense, but then then we have option where we charge students, and that is for non-PBSA options, which is मतलब उसमें आपको एक तो पूरे सारे एकोमोडेशन को आपको कुरेट करना है, कंसोलिडेट करना है, एंड देन वी टेक ओनर्स कि यार कुछ हो जाएगा हम है, राइट. तो उसके लिए भी चार्ज नॉमिनल फी, राइट. एंड उसमें भी अगर वी डोंट एबल टू गेट यू एकोमोडेशन, वी रिफंड द फुल मनी, राइट. सो आइडिया इज नॉट टू मेक मनी विदाउट क्रिएटिंग वैल्यू. आई एम अ बुद्धिस्ट, सो फॉर मी वन वेरी इंपॉर्टेंट thing is always create value, and if you're creating value, you should be paid, to ensure that we are getting a better, see, assisting 100,000 students, managing 400 people team, it costs money, right. So but I'm not taking the money from student pocket. We are earning that money by creating value, by providing experience, to our accommodation partner and to our students, right. So this is how the journey process. ठीक है. तो सौरभ, मस्त प्रोसेस समझ में आ गया, एंड कि क्या क्या कब कब करना होता है. अब थोड़ा मैं डेविएट होऊंगा अकोमोडेशन से, एंड एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट जो भी ब्रॉडर लेवल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इश्यूज हमारी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, राइट. एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, राइट. तो अभी जस्ट टू समराइज, जो मैं बच्चों से बात करता हूँ, पॉडकास्ट में गेस्ट से बात करता हूँ, या जो यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, पीपल आर अफ्रेड, राइट. यूएस जाने में लोगों को लग रहा है वीज़ा का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, राइट. कनाडा में अपार्ट फ्रॉम जो उन्होंने रिड्यूस किए हैं नंबर ऑफ सीट्स, उसके अलावा स्टूडेंट्स हैव कंसर्न उनकी जॉब्स का कंसर्न है. यूके में इकोनॉमी पे ब्रॉडर लेवल कंसर्न है. यूके इज ब्रॉडर लेवल स्टूडेंट्स आर गोइंग इन दिस वे, राइट. एंड देन देयर आर सो मेनी न्यू कंट्रीज आर कम, राइट. मतलब 10 साल पहले जब हमने ज्ञान स्टार्ट किया था, तो माल्टा नहीं सुना था. माल्टा तो सुना ही नहीं था. आज भी मुझे वो डाउट है कि माल्टा जाके मैं this is coming from a place जहाँ पे I don't know about Malta, right. But क्या opportunities हैं, right. तो अभी आपका अगर कोई पेरेंट और स्टूडेंट इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है, तो अब्रॉड एजुकेशन पे क्या टेक ऑन द ब्रॉड? No, it's a बहुत layered question again. I don't know how deep you want me to go, and I'm also a podcaster, and lots of my wisdom is borrowed wisdom. I've been fortunate to rub shoulders with who's of the industry, who've been in industry for 30 years, 35 years, right? तो थोड़ी सी मेरी यहाँ wisdom borrowed है, but then this is where if you're in the industry for 15 years, you see some cycles, so
गलत कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। मतलब मैं अगर बोलूँ कि गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा। कौन सी कंट्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बोलती है आप आओ मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा? इंडिया में बोलते हैं, वहाँ नहीं बोलते। सो अगर आप गलत इंटेंट से जा रहे हो या आपको किसी ने बताया है कि आप वहाँ जाओ आपकी लाइफ रॉकिंग हो जाएगी, आपको समझना है आप क्यों जा रहे हो, राइट। एंड एक स्टेप पीछे हुआ तो ग्लोबल मोबिलिटी में हम लोग, राइट, हम स्टेबल बोलते हैं ग्लोबल मोबिलिटी में। अब ग्लोबल मोबिलिटी थ्रू इमिग्रेशन होती है, मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन होती है। स्टूडेंट्स का मतलब है एजुकेशन के थ्रू होती है ना। अगर आज के इंडिया में अगर आप बांग्लादेशी, नाइजीरियंस, नेपाली आते हैं, आप खुश होगे कि आपकी जॉब ले ली? Probably अगर impacting me तो नहीं होगे ना खुश। बट जब इंडियन यूनिवर्सिटी नाइजीरियन को बुलाती है, श्रीलंका को बुलाती है और उनसे 4x या 3x ज़्यादा फीस लेती है, राइट, वो बोलती है आपको जॉब मिलेगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ क्लियर बहुत है। इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज लाइक UK is my strongest market, right? US, we're doing very well now, right? Canada again, we have all gone through a cycle, but I believe कुछ चीज़ें, ये साइकिल होती है, हर कंट्री की साइकिल होती है। UK ने भी शुरू में कुछ चीज़ें करी, रेक्टिफाई करी, करेक्ट करी। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ चीज़ें रेक्टिफाई करी, करेक्ट करी। कनाडा अब रेक्टिफाई करेक्ट कर रहा है। US बीन ऑलवेज बीन वेरी मेजर्ड, राइट, बिकॉज सी एक तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है। यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, कंट्री को उतने ही चाहिए जितने उनको चाहिए। स्टूडेंट्स को बाहर जाना है बेटर लाइफ के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए या स्किल्स के लिए, बट उन्हें वहां जाना है जहाँ पे आउटकम आना चाहिए, सो एवरीवन इफ दे सी दे आर नॉट, नो वन इज रॉन्ग, राइट। एंड मैं आके बोलूँ, और मैं तो बोलता हूँ सुपर पावर है, हम एडमिशन नहीं कराते ना, तो मैं तो बोलूँ नहीं आप UK जाओ, माल्टा जाओ, US जाओ, कनाडा जाओ, मैं तो बोलूँ आप बाहर पढ़ने जाओ। मैं तो वही क्वेश्चन करता हूँ। इफ यू सी फ्यू माय पॉडकास्ट, आई हैव क्वेश्चन कि एजुकेशन जरूरी है? आज AI है, यूट्यूब है, आप क्यों 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कर रहे हो? मैं तो ये भी क्वेश्चन करता हूँ कि स्कूल होम ट्यूटरिंग करनी चाहिए कि बच्चे को स्कूल में पढ़ना चाहिए? आई हैव अ 5-year-old डॉटर, राइट। सो व्हेन आई से एज अ एंड यूजर आई नीड टू क्वेश्चन एंड देन आई नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने MBA किया था, मैंने IIM-SIT से नहीं किया था, मैंने बड़े महंगे से ग्रूमिंग स्कूल से किया था, इन्फिनिटी से। एंड पीपल एट टाइम आई फील दैट कि यार I wasn't good enough. Probably that time, yes. I wasn't like, probably मुझे किसी ने बताया था कि IIM से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टार्टअप करना है या आपको फंडिंग चाहिए या आपको एक नेटवर्क चाहिए, But that one time I wanted a grooming, and I didn't get my 50% in my undergrad. I did economics honors, like I'm openly telling you, but और मैं पढ़ाकू था, पढ़ाई में ठीक था, बट उस समय प्रायोरिटी अलग थी, हमें किसी ने बताया नहीं था। हम तो खाने के लिए जी रहे थे, हम तो पार्टी करने के जी रहे थे, राइट। बट जब मैं MBA करा, ग्रूमिंग जाके मेरी ग्रूमिंग हुई, मेरा होराइजन बढ़ा, देन आई रियलाइज कि यार प्रॉब्ली एलोन मास्क और हम में इतना ही डिफरेंस है कि वो क्यूरियस है, वो और ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, एंड देन उसके कुछ अपने फैक्टर्स है। प्रॉब्ली ही वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, ही वेंट टू US, ही गॉट दैट, इतने डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। आप भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो अवेयरनेस होना जरूरी है, राइट। So coming back to point, unfortunately, even with a progressive government like India at this point in time, we still have 1500 universities and हमारे 42 million students है। तो आपको 1% बंदा IIT UPSC करता है, 99% में से 5-10% Amities and Ashoka and Flames afford कर सकता है। And people who are very good and they can afford to US, as I'm saying ना, it's a privilege। आप ट्रेजेक्टरी चेंज होती है। मुझे किसी ने समझाया था, पढ़ा था कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, इट्स आल्सो अबाउट वेयर यू आर वर्किंग, विद हुम यू आर वर्किंग। तो ये स्टार्टअप अगर आप सिलिकॉन में बना रहे होते हैं, राइट, प्रॉब्ली आपकी वैल्यूएशन, आपकी लाइफ थोड़ी इजी होती। जो आपको 10 साल लग गए, हो सकता है 3-4-5 साल में बन जाता है या खत्म हो जाता, दोनों ट्रेजेक्टरी है। सो सिमिलर इफ यू गेटिंग अ चांस टू स्टडी अब्रॉड एंड इफ यू अफोर्ड इट एंड यू आर वेरी क्लियर फॉर व्हाट पर्पस यू आर गोइंग, देन बाय ऑल मीन्स यू शुड गो। इट्स एन एज, इट्स अ सुपर पावर। हम ओनली 5 लाख से 7.5 लाख बच्चा, अराउंड 500 to 750,000 स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया गो अब्रॉड। इमेजिन इन 42 million इंडियन स्टूडेंट्स, और only you are 500,000 to 1 million students who are going abroad. What super edge you will get. But then if you come on ROI, if you are spending 50 lakhs to a crore and you are coming back and you are getting a job there, then बढ़िया है, 40,000 पाउंड की मिल गई, 50,000 मिल गई। But you need to be aware
कि आपका इंटर्न जॉब है तो पहले दिन ही आप अपने प्रोफेसर्स एंड अपनी सोसाइटीज में मतलब जॉब के लिए पढ़ो, फिर स्किल्स के लिए पढ़ो। बट अगर आप कह रहे हो मैं 8-9 महीने तो लंदन घूमूंगा, यूरोप घूमूंगा और फिर आगे बोलूँगा जॉब नहीं मिली, क्यों मिलेगी? मैं अगर लोकल यूके स्टूडेंट होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा, मैं आई विल प्रेफर माई लोकल डोमेस्टिक स्टूडेंट इफ योर स्किल एंड देयर स्किल आर सेम, यू नो, बिकॉज मुझे आपको 40,000 50,000 पाउंड की मिनिमम सैलरी देनी पड़ेगी, और हो सकता है कम देनी पड़े। एंड देन एज अ इंडियन मैं भी तो पहले इंडियन स्टूडेंट को प्रेफर करूँगा ना, राइट? फिर इंटरनेशनल करो बिकॉज ऑफ द स्किल्स और डाइवर्सिटी और वट एवर रीजन, राइट? तो ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। देन बाय ऑल मीन्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप क्लियर, आपको जाना चाहिए। इट्स एन सुपर एज, इट्स अ सुपर पावर, यू नो, इफ यू एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव एजुकेशन लोन, राइट? मेरा ही थॉट था कि यार एक छोटी स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैं अंडर मैं मेरठ से हूँ, राइट? मैं अंडर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, स्कूल आई वॉज अ टॉपर, 12th मैंने ICSE किया। आई हैव अ कजन हु डिड हिज अंडरग्रेड फ्रॉम UK एंड यू लाइक एंड वी वर लाइक बेस्ट ऑफ ब्रदर ना, कहता भाई अंडरग्रेड के लिए आ जा। आई वॉज वेरी क्लियर किया तू दिल्ली वाला है, तेरे पास थोड़े पैसे, मेरा मैं नहीं आ सकता, राइट? उस समय एक तो ये भी था कि रिस्क नहीं लिया, किसी ने अवेयर नहीं किया, ज्ञान धन था, एजुकेशन लोन होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, ग्रांट्स होते हैं, एंड यू नीड टू स्टार्ट अर्ली इवन एज योर जर्नी। अगर पता होता तो मतलब MIT हो या ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो, कोई भी पढ़ सकता है, यू नो, बट आपको ट्रेड ऑफ करना होता है, यू नो। आप 8 से शुरू होते हो, फिर अपनी अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अपने पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर व्हिच कम्स टुगेदर। इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इट्स पेरेंट्स, इट हैव टू बी ऑल, राइट? बट एनीवन गेटिंग अ चांस टू स्टडी अब्रॉड should not miss it, right? But then go with the right intent. Lonely होगा, easy नहीं होगा, ये जो रील्स में आता है कि वाओ क्या रील्स है, right? On the ground, the journey is worth it, but there's a trade-off. There are loneliness, it's expensive. You know, there are times when you feel you will question yourself, you will miss Diwali, you will miss Holi, you will miss your hangout with your friends. But beyond that, if you go, you survive. You know, the journey is amazing. You're getting life skill for life. जो समझ में आया मुझे आपने जो बताया उससे, कि अगर अपॉर्चुनिटी है, इफ यू कैन डू इट, इफ यू कैन अफोर्ड इट, इट्स अ प्रिविलेज, यू कैन डू इट, यू डू इट, गो विद द इंटेंट। लाइफ हार्ड है, लाइफ इंडिया में भी हार्ड है, लाइफ बट वर्थ इट है, बट वर्थ इट है। ठीक है सौरभ, थैंक यू, बहुत मजा आया। आई थिंक जितना मैंने सीखा है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकोमोडेशन में इतना डीप कभी हम लोग गए नहीं थे, तो पर्सनली बहुत सीखा है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल बाहर जा रहे हैं, अगले साल बाहर जाएंगे, एंड ऑल द स्टूडेंट्स जिसको भी पॉडकास्ट मिलेगा, आई थिंक वन थिंग इज क्लियर कि दे विल अंडरस्टैंड कि यार अकोमोडेशन इज नॉट टू बी ट्रेडेड लाइटली, यू शुड नॉट, इस पे फोकस करना चाहिए राइट टाइम पे। डे 1 मत करो, पहले एडमिशन ले लो, फिर एडमिशन आने के बाद इस डायरेक्शन में दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, तो अच्छा रहेगा लाइफ अगले 2-3 साल या 5 साल।